Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will continue with the rotation and revolution chapter, and here in this video we will cover specifically the equinox part and the solstice part. Okay, so what is an equinox, what is solstice, we will study in this video. But before proceeding on to that part, first we should know that what would happen if the Earth's axis wouldn't have been inclined. We all know that the Earth's axis is slightly inclined. ये सीधा नहीं है, this is theta. It is inclined at an angle of 23.5 degree. But what would happen if the Earth's axis would have been a straight line? This is a major question which is asked in the exam. So if the Earth's axis would have been a straight line, vertical line, then what would happen? Two things would happen. First, the length of day and night would have been equal all around the world. Okay? So if the Earth's axis would have been a straight line, then the length of the duration of day and night would have been same all around the world. And secondly, the temperature would have been same all around the world. Okay, so these are the two things which you need to know, that what would happen if the Earth's axis would have been a vertical line instead of being slightly tilted. Okay, so remember these 2 points. So now we will study about solstice. We will know what is solstice, what are the dates of solstice. Okay, so this is a bit tricky part, but if you understand, then it will be easier for you. Okay, so let's see how the solstice takes place. Okay, now see what is happening in solstice. See, we know that the sun is stationary. sun तो एक जगह फिक्स्ड है और अर्थ ही जो है वो घूमती रहती है सन के चारों तरफ. ठीक है, तो see, we all know, first you should know that the earth is slightly tilted. अर्थ एकदम स्ट्रेट नहीं है. अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. ठीक है, तो देखो क्या होता है. we all know that the earth is revolving around the sun and this is causing the change in seasons. Okay, अब सी क्या होता है कि this is the earth. ठीक है, अर्थ का एक पार्ट, this part of the earth is tilted towards the sun. तो क्या होगा, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज ऑल्सो द इक्वेटर 0 डिग्री. ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. तो क्या होगा, दिस इज द नॉर्थ पोल. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर्स होगा और यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, द साउथ पोल, इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. तो यहाँ पे विंटर्स होगा. ठीक है, तो अर्थ का वो साइड जो सन की तरफ टिल्टेड रहता है वहां पे समर्स होता है, और जो साइड अर्थ सन के ऑपोजिट फेस करता है वहां पे विंटर्स हो जाता है. ठीक है, ठीक सेम होता है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है, देखो, दिस साइड, द नॉर्दर्न साइड इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. थोड़ा सा इस तरफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा विंटर, और दिस सदर्न साइड इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन. तो यहाँ पे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में समर. ठीक है, अब क्या होता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तब यहाँ पे एक चीज है, वो है समर सोलिस्टिस. ठीक है, समर सोलिस्टिस. अब क्या होता है समर सोलिस्टिस में, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. समर सोलिस्टिस के टाइम, और ये समर सोलिस्टिस होता कब है, इट हैपेंस ऑन 21st June. Okay, now what happens on 21st June? On 21st June, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. ठीक है, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. That's why we experience summer season. ठीक है, we experience summer season in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere winter होगा, क्योंकि this side is facing away from the sun. ठीक है, तो the sun rays are falling directly on the Tropic of Cancer. That's why we are experiencing summer season. अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है. दिस इज द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री और इसके ऊपर है नॉर्थ पोल 90 डिग्री. ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट टू एक्सपीरियंस 12 hours of daylight at the equator, 13 hours of daylight at the Tropic of Cancer, 66.5 डिग्री या इसके ऊपर जितने भी है कंट्रीज, यहाँ पे हो जाता है 24 hours of daylight. ठीक है, तो समर सोलिस्टिस के टाइम क्या होता है,
ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस द कुछ चीजें होती है, देखो पॉइंट वाइज याद रखो. फर्स्ट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस, फर्स्ट द northern hemisphere, in the northern hemisphere the north pole faces the sun. ठीक है, the north pole faces the sun, and what happens to the south pole? The south pole faces away from the sun, faces away from the sun. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस? देयर इज समर इन द northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. Winter यहाँ पे क्यों? क्योंकि this side is facing away from the sun, so that's why winter here. Okay. Fourth point which you need to know is that during summer solstice or after summer solstice, what happens? After 21st June or on 21st June, what happens? There is 12 hours of daylight, 12 hours of daylight at the equator, 13 hours 27 minutes, ये याद रखना, ठीक है. 13 hours 27 minutes of daylight at the tropic of cancer, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे. फिर 24 hours of daylight कहाँ पे? 66.5 डिग्री के अबव. ठीक है, इसके ऊपर जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं वहां पे हो जाता है 24 आवर्स ऑफ सनलाइट और डे लाइट. ठीक है, तो दैट्स वाई 24 आवर्स ऑफ डे लाइट. यहाँ के इस लाइन के ऊपर जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होता है ड्यूरिंग दी समर सीजन, जून 21 और जून 21 के बाद में जो दिन आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री है, वो है नॉर्वे. नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. व्हाई? बिकॉज वहां पे जब समर सीजन होता है तब वहां पे रात होती ही नहीं है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज दिस साइड ऑफ द अर्थ इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, तो रात होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो दैट्स वाई वहां पे रात होती ही नहीं है, एंड दैट्स वाई नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नॉर्वे में 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होता है. ठीक है, एंड कितने महीने तक का होता है? फॉर 3 months. ओके, फॉर 3 months starting from 21st June onwards, Norway gets to experience complete sunlight or daylight, 24 hours daylight for 3 months. ठीक है, याद रखना ये चीज. अब क्या होता है? ये हो गया ये वाला पार्ट, समर. जब इंडिया ही सोच लो, इंडिया भी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है. तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या जब इंडिया में समर्स होते हैं तब ये चीज होता है. और व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तब क्या होता है? अब इस वाले साइड पे जा जाते हैं. नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग. सी द सदर्न पोल, द साउथ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन एंड द नॉर्थ पोल इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. तो क्या होगा यहाँ पे? जो साइड सन के तरफ फेस करती है वहां पे समर होगा, और जो साइड सन के उस तरफ चली जाती है वहां पे हो जाएगा विंटर. ठीक है, एस लिखा है समर, विंटर डब्ल्यू लिखा है. ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे. व्हेन द सदर्न साइड और व्हेन द साउथ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, तब डायरेक्ट रेस कहाँ पे आएगी? वो आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. ठीक है, द सन रेज विल कम डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. वाई यहाँ पे समर होगा क्योंकि में लाइट ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा. तो यहाँ पे अब क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? फर्स्ट, द सदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन. ठीक है, व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, तब क्या क्या होता है? फर्स्ट, द सन रेज fall directly on the tropic of Capricorn. The sun rays fall directly on the tropic of Capricorn. ठीक है. सेकेंड क्या लिखा है? There will be summer
इन देयर विल बी समर इन सदर्न हेमिस्फेयर और विंटर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में समर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो जाएगा, यहाँ पे विंटर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट व्हाट यू नीड टू नो इज दैट हियर there will be at the equator there will be 12 hours of daylight, 12 hours of daylight at the equator, ठीक। then 13 hours 27 minutes of daylight at 23.5 degree south, that is tropic of Capricorn। और यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, जब हम ये 66.5 डिग्री के नीचे चले जाते हैं, वहां पे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे पूरा डे लाइट होगा। वाई? बिकॉज दिस साइड इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन। तो ये हो गया द सॉल्स्टिस। तो बेसिकली सॉल्स्टिस इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब होता है? ये होता है ऑन 22 दिसंबर, ठीक है, ऑन 22 दिसंबर, ठीक है। So remember this, okay? These are the two important solstices which is very very important for the exam point of view. Now we will study about the equinox. Equinox means equal days and nights. जैसे 2 दिन होते हैं यहाँ पे, जब सन की किरणें एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक बार गिरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे एक बार गिरती है, ठीक वैसे ही इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्विनॉक्स में द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर। अब देखो इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्विनॉक्स में द सन रेज फॉल डायरेक्टली, ये जो सन है इसकी जो रेज है, इट फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर, इट फॉल्स डायरेक्टली, दिस इज द इक्वेटर लाइन, ठीक है। इक्वेटर लाइन इसको मान लो। तो इट फॉल्स, ये जो सन है इसके जो रेस है, इट फॉल्स डायरेक्टली एट द इक्वेटर, ओके। तो दैट्स व्हाई इट कॉजेस इक्वल डेज एंड नाइट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, ओके। अब इक्विनॉक्स के भी 2 दिन होते हैं, ठीक है। सो कौन से दिन होते हैं? एक होता है मार्च 21। मार्च 21 के दिन क्या होता है? द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर एंड देयरफॉर इट कॉजेस इक्वल डेज एंड नाइट्स। मार्च 21 के दिन हमेशा याद रखना, इट विल कॉज देयर विल बी इक्वल डेज एंड नाइट, ठीक है। जितना लंबा दिन उतनी लंबी रात, ठीक है। 12 आवर्स ऑफ दिन, 12 आवर्स ऑफ नाइट, याद रखना ये चीज। और एक होता है सितंबर 23, यहाँ पे भी इस दिन भी द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर लीडिंग टू इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, 12 आवर्स ऑफ नाइट टाइम, ठीक है। अब मार्च 21 को क्या कहा जाता है? इस दिन को एक नाम दिया गया है, जैसे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस नाम दिया जाता है ना, तो यहाँ पे भी मार्च 21 को क्या नाम दिया गया है? मार्च 21 को बोला गया है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सितंबर 23 को बोला गया है ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? लेट अस क्विकली रिवाइज। फर्स्ट इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ लेते। इक्विनॉक्स मींस इक्वल डेज एंड नाइट्स, और ये कौन कौन से दिन में होते हैं? इट हैपेंस ऑन 2 डेट्स, फर्स्ट ऑन सितंबर 23 एंड सेकंड ऑन मार्च 21, ओके। तो जब मार्च 21 को क्या होता है? मार्च 21 को द सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली एट द इक्वेटर एंड इट इज कॉजिंग इक्वल लेंथ, इक्वल डे एंड नाइट ऑल अराउंड द ग्लोब। और इसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जब सितंबर 23 पे होता है, इस दिन होता है, तब इसको कहा जाता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। एंड यहाँ पे भी द सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, ओके। 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट टाइम, ओके। द लेंथ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल अराउंड द ग्लोब, ओके। नाउ व्हाट इज सॉल्स्टिस? सॉल्स्टिस में क्या होता था कि जो तरफ, बस इतना ही याद रखो कि जैसे जो भी हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट कर रहा है वहां पे समर होगा, और जो हेमिस्फेयर सन के ऑपोजिट जा रहा है वहां पे विंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग के इंडिया में समर चल रहे हैं, वी आर इन जुलाई मंथ, समर चल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मानसून चल रहा है लेकिन समर ही तो है, गर्मी तो है। तो लेकिन इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो क्या होगा? दे विल बी विंटर सीजन, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है? जब अर्थ का एक साइड
सन की तरफ फेस करता है, जैसे सदर्न पोल, साउथ पोल, ठीक है। जब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस करता है तब यहाँ पे हो जाएगा समर, और ये वाला साइड सन से दूर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विंटर, ठीक है। बस इतनी सी तो चीज है। I hope things are clear to you now. The concept of equinox and solstice, this is very very important, so learn it. ठीक है? So with this we have come to the end of the lesson. Remember, this part is the most important part. Okay, and if you have any query regarding this thing, you can ask me in the comment section below. Okay, thank you for watching.